Hare Krishna, good evening, welcome all of you all for our Saturday evening Bhagavatam class. So we are in the 10th chapter. We have completed 8 verse. So we will revise the 8th verse and then we will go to the 9th verse. I request someone to read the 8th verse translation, please. Afterwards, when the Lord asked permission to depart and the king gave it, the Lord offered his respects to Maharaja Yudhishthir by bowing down at his feet. And the king embraced him. After this, the Lord, being embraced by others and receiving their obeisances, got into his chariot. Next verse. 1.10.9 and 10. Read. At that time, Subhadra, Draupadi, Kunti, Uttara, Gandhari, Dhritarashtra, Yuyutsu, Kripacharya, Nakula, Sahadeva, Bhimsena, Daumya, and Satyavati all nearly fainted because it was impossible for them to bear separation from Lord Krishna. Very, very important. This shows their love and affection towards Krishna. So, how can one develop love and affection towards Krishna? My question is, how can one develop this love and affection? We say that this is good that we are developing love and affection. How is it possible? How is it possible that one develops Krishna? We are all trying to develop an artificial way of love and affection. Asli love and affection kab aayega? When we have got 100% Sharanagati. Sharanagati jab tak nahi hoga, all our so-called devotion just remains a nice decoration without any actual content. अगर कोई actual content चाहिए, then one should have surrender, Sharanagati. और Sharanagati is the most important essence. In devotion, the most important essence is Sharanagati. And if one develops Sharanagati, how is it possible? Tell me, how will it be possible for one to develop Sharanagati? हम लोग हरे कृष्णा करते हैं ना? What does this mean? कहते हैं जब द्रौपदी ने हाथ ऊपर करके शरणागति की ना, she saying अब इस हाथों में बल नहीं रहा. These hands are useless. When one surrenders in that mood, that my hands are, I am not capable of doing anything with my own hands. Now, जो करना है आपको करना है. Then you are in a 100% surrendered. Otherwise, it is very difficult for one to surrender. If you reserve something, आप अपने लिए मैं थोड़ा बहुत पे कर लूंगा, बाकी भगवान कर लें. क्या है ना, भगवान में इतना मैं कर लूंगा, बाकी का आप कर दो. अगर आप कोई व्यक्ति बोले ना मैं इतना कर लूंगा बाकी का मैं करूं, मतलब वो शरणागत नहीं है. शरणागत व्यक्ति क्या है? मेरे अंदर कोई भी क्षमता नहीं है, जो भी करना है आपको करना है. Then you are in a 100% surrendered state. So, I'll tell you one small story of Nachiketa. Story of Nachiketa is very important and शास्त्र में उसका कई बार मेंशन है. एक बार नचिकेता के पिताजी he was doing हवन, यज्ञ कर रहे थे. तो यज्ञ करने के बाद दान देना रहता है. तो दान is a big important part or not a very crucial part of the यज्ञ. कि जब तक आप दान नहीं करोगे यज्ञ आपका पूरा नहीं होता है. और कुछ लोग हैं दान करने के बाद घमंड करते हैं. भगवद गीता में क्या कहा है भगवान ने? यज्ञ दान तप चैव नत्र जायम कार्यम एव तत् यज्ञ दान तप चैव पावनानि मनीषिणाम. ये 3 कार्य कभी छोड़ना नहीं चाहिए. मगर कुछ लोग हैं जो यज्ञ, दान और तप तीनों करने से सोचते हैं कि हमने बड़ा कार्य किया. क्या बलि महाराज जैसा दान कर सकते हैं कोई? फिर भी वो कहा क्या रहा? असुर रहा ना. हिरण्यकशिपु जैसा कोई तप कर पाया? फिर भी वो कौन रहा?
और रावण से बड़ा यज्ञ, एक एक सर काट के ही वॉज ऑफरिंग इट इन द सैक्रिफिशियल फायर। सो उससे बड़ा कोई यज्ञ करने वाला कोई नहीं, पर फिर भी एंड में कौन रहा? So all three things are important, but they are not the only criteria of being a devotee. Someone will say, "Sir, I am big. I give lot of donation." Very good, nice. That donation is, Shastra says in the shloka is there. I'm just forgetting the shloka, which says, like water connected in a stagnant water, when connected in a one place, बहुत देर तक वो जल रहता है ना, तो बांस बांधना। सो व्हाट डू, उस जल को निकाल दीजिए, तो अपने आप दूसरा जल भरता है। दिस इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दान। वन इज एबल टू डू फाइन, बट इफ इज नॉट एबल टू डू देन ऑल्सो इट्स ओके, बिकॉज ये अगर प्रभु जी मेरे अंदर क्षमता नहीं है दान करने का, मेरे अंदर क्षमता नहीं है यज्ञ करने का, मेरे अंदर क्षमता नहीं है तपस्या करने का, कोई बात नहीं। इस दुनिया में सिर्फ 4 तपस्या करना है। क्या करना है? नो मीट, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग। ये 4 चीज कर लिया ना, ये बड़ा तपस्या कर लिया। यही नहीं होता है, इतना छोटा सा चीज भी इंसान से नहीं होता। Yesterday I gone to Pune. I got some function, so I had gone there. So पूजा में बैठा था, तो after that whole family was there with us. Let's have food. You all have. I am out of it. I'll eat fruits. All of you? No. We all are going to have vegetarian food only. No, who says we are going to eat non-veg food? Hey, we are going to have vegetarian only. But I don't take vegetarian also. I want sattvic. I don't want without onion and garlic. So I don't take onion and garlic. Oh, it's very difficult. You can't survive. I know it's difficult. I'm surviving and quite fatty also. So don't worry. I'll survive further also. So तपस्या करना है ना, एक छोटा सा इतना सा करने का भी बड़ा, it's a challenge. But you don't understand. But these are the least tapasya we can do in this material world. So Nachiketa's father was doing यज्ञ, तो उसमें दान दे रहे, और दान में क्या दिया? खूब सारे गाय दिए। मगर कौन से गाय दिए? जो कुछ काम के नहीं, घर तक पहुंचेंगे क्या गारंटी? जो लेके जा रहा है, ब्राह्मण लेके जा रहा है, वो घर तक भी गाय लेके पहुंचेगा क्या? उसका भी गारंटी नहीं। ही माइट कोलैप्स, काउ में कोलैप्स ऑन द वे ओनली। मतलब या तो डिसेबल्ड काउस, और इसका लूला लंगड़ा गाय है, या तो फिर बहुत बूढ़े गाय। तो बेटे ने बोला, अरे व्हाट इज दिस? So the son went and told his father, "Father, what are you doing? You are giving these cows which don't give any milk. What is the purpose of giving a cow? In fact, any donation, even if you're giving your maid servant something, give something which is of some potential use of it." It's people today's date donate things which they don't want. That's not donation. Please don't give it away. Okay, you may consider it as a good act, but that doesn't come under the category of donation. Please, under any circumstance, don't think it comes under that. So finally, Nachiketa came and told his father, "Please, father, somehow or the other, don't do this. What you are doing, these old cows you are giving, which are no use." तो उन्होंने बोला ठीक है। पिताजी ने बोला, मैंने तो तय कर लिया है, दान दूंगा। आई एम गोइंग टू डोनेट, वेदर इट्स गुड और बैड, आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम गोइंग टू डू। देन देयर वाज बाप बेटे में थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई, और बेटे ने तभी गर्मा गर्मी में बोल दिया, तो मुझे भी दान दे दो। आपके सब चीजों को दान दे रहे हो, तो मुझे क्यों छोड़ दियो? मुझे भी दान दे दो। पिताजी को भी गुस्सा आ गया। हिज फादर ऑल्सो सेड, ओके, I have given you to Yamraj. I have given it to Yamraj. मैंने यमराज को आपको दान दे। ठीक है। जैसे उसने बोला, इसके लिए शब्दों को सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। गुस्से में कई बार हम लोग अपशब्द बोल देते हैं। We speak something wrong, and that is very very bad.
This boy immediately got transferred to Yamaloka. He went into the house, residence of Yamraj. And उसने यमराज पहुंच गया, और because he has been donated to Yamaraj. See, mind you, he is not been taken by in Yamaloka. He has been donated to Yamaraj. तो गए वहां पे, दरवाजा यमराज जी का घर का दरवाजा खटखटाया, उनका रेजिडेंस है ना, तो उन्होंने बोला कोई दरवाजा खोला नहीं, तो पड़ोसी को पूछा रहेगा फ्लैट नंबर सो एंड सो, पड़ोसी वो स्विगी वाला आके पूछता ना वैसा तो वैसा आके पूछा उसने कि भाई आपने यमराज जी कहाँ गए, तो पड़ोसी अभी गए, यू जस्ट मिस्ड हिम, कहाँ गए, नरक गए। अच्छा, 3-day टूर, so site visitor था ना उनका, he has gone for a 3-day tour to check whether Naraka is properly functioning or not, so you'll have to wait. He said no problem. He was waiting outside, दरवाजे पे ही बैठा हुआ था नचिकेता, एंड 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। 3 दिन बाद यमराज आए, तो यमराज ने आके देखा, अरे बेटा कौन है तू? He told the whole detail, मैं ऐसा ऐसा मेरे पिताजी ध्यान कर रहे थे, उससे मैं बोल दिया, तो मैं यहाँ पहुंच गया तुरंत। ये ब्राह्मण के शब्द हैं, तो शब्द गलत तो नहीं जाएंगे, सीधा पहुंच गए। ठीक, तो जैसे वहां पहुंचे नचिकेता, he asked नचिकेता, what did you eat for 3 days? आप 3 दिन से यहाँ बैठे हो, तो what did you eat for 3 days? So Nachiketa was very intelligent. He said, first day I ate your wealth. What did he say? पहले दिन मैंने आपका धन। Second day I ate your vehicles, Aishwarya, all your paraphernalia I ate. And third day I ate your punyas. This is what शास्त्र से हम लोग कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। Why? If someone comes to your house and you don't give him anything to eat, it is the greatest sin. He eats away your good deeds, pious deeds. Many people don't know this. अरे ठीक है, आजकल तो फोन करके नहीं है, ये वो and all that stuff is going on. Because nowadays we are only friends on Facebook. We are not real friends और रियल रिलेटिव्स। बट शास्त्र में क्लियर कट मेंशन किया गया है कि अगर कोई गेस्ट अतिथि आता है और रात को 12 बजे भी आए, तो भी उसको कम से कम 1 गिलास दूध पिलाना चाहिए, कम से कम 1 गिलास दूध पिलाना चाहिए। आई एम श्योर दोज डेज देयर मस्ट बी नो वेगन्स। आजकल पूछेंगे नहीं, हमें वेगन बोल दिया तो फिर वो भी नहीं पिला सकते। सो all given and said, it was Yamaraj understood कि he is very intelligent, very smart, he knows the Shastra. Immediately he said, I am ready to give you 3 boons. Don't eat my wealth, my punyas and my Aishwarya, my vahan and everything, don't eat. तो उसने बोला ठीक, 3 boons. तो पहला boon उसने पूछा, पहले चीज मेरा और पिताजी का झगड़ा है जो किटपिट चल रहा है ना, वो खत्म कर दो। He should forgive me. मैंने भी गलती से बोल दिया, मुझे भी नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने भी थोड़ा गुस्से में बोल दिया, एंड द होल थिंग वाज बैड, तो इट शुड बी नलिफाइड। His father Yamraj said, okay, चलो, first boon granted. Second boon, second आशीर्वाद उसने मांगा कि द एंटायर यज्ञ का फायर जलाने का जो विधि है वो कैसे होना चाहिए। तो he says, teaches, okay, I'll teach you everything. And in fact, he taught him to such an extent that even till today, the yajna fire is called as Nachiketa fire. The fire is called as Nachiketa fire. तो या नचिकेता अग्नि बोलते हैं उसको, नचिकेता अग्नि। तो एंड थर्ड बोन दिस बॉय सेड, एक काम करो, मुझे आप मोक्ष पाने का तरीका बोलो। तो यमराज बोले, मोक्ष क्या मांग रहे, कुछ और मांगना, सिंपल। तो व्हेन यमराज सेड मोक्ष मांग, तो
fellow said, I don't want to compromise anything. मुझे मोक्ष समझना है. अच्छा ठीक है, तुझे मोक्ष समझना है तो मुझे तुझे पूरा विस्तार में समझाना पड़ेगा. हाँ समझाओ. तो पहला, मोक्ष कमाने के लिए आपको शरणागति करनी होगी. किसकी शरणागति करनी होगी? विष्णु की शरणागति करनी होगी. यू हैव टू सरेंडर टू विष्णु. नाउ यू हैव टू सरेंडर टू विष्णु. ठीक है. नाउ माय क्वेश्चन हियर इज, विष्णु का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विष्णु? वी ऑल नो दिस डेफिनेशन, बट यमराज ने जो नचिकेता को बताया ना, दैट डेफिनेशन इज वेरी नाइस. ही इज सेइंग विथ रेफरेंस टू हिम. कई बार घर में खाना नहीं होता है ना, मतलब सब्जी वगैरह नहीं होता, तो अचार के साथ खाते हैं ना. रोटी भी खा लेते हैं, दाल चावल भी अचार के साथ खा लेते हैं ना. तो he gives an explanation. Vishnu is that one who eats the entire world. सृष्टि भी वही करते हैं, वही खींचते हैं, और मुझे ना अचार की तरह यूज करते हैं. खाना कैसे खाते हैं भगवान? आदमी कैसे खाना खाएगा? अभी समझो दाल चावल खा रहा है, तो साथ में थोड़ा कुछ समथिंग ही रिक्वायर, चटनी या अचार, तो थोड़ा सा चाट के खा लेता है, बराबर. तो और एंड में पूरा खाना होने के बाद थोड़ा सा अचार बच जाता है, वो क्या करता है? उसको भी लेके खा लेते हैं ना. एंड में यमराज को भी खा लेते हैं. भगवान एंड में यमराज को भी खा लेते हैं. प्रलय के टाइम का, एट द टाइम ऑफ प्रलय, सृष्टि का जब अंत होता है, दैट टाइम ही ईट्स लॉर्ड विथ, आई मीन लॉर्ड ईट्स इवन द एंटायर सृष्टि. एंड जो बच गया यमराज, बिकॉज ही इज द निमित्त, ही बिकम्स द निमित्त. निमित्त यमराज के थ्रू पूरा दुनिया, मतलब चाहे वो प्राणी हो, पक्षी हो, कोई भी जीव हो, उसको यमराज ही एंड में खत्म कर. तो इसका शरणागति करना होगा. तो he says, okay, I will do शरणागति to him, and this is how I will finally get my moksha. So yes, he says. So if someone wants moksha, what is the first thing what a person should have? Surrender. Without surrender, moksha is not. तो अगर कोई सोच रहा है मैं शरणागति किए बगैर जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाऊंगा, it is not at all possible. So another thing which Yamaraj teaches is भगवान को पाना. भगवान को कैसे पाना है? हाउ कैन लॉर्ड बी अचीव? भगवान को कैसे पा सकते हैं? अहेतु की भक्ति है. ठीक. और सी वाई भगवान को पाना इतना मुश्किल है मालूम है? अभी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको दिल्ली जाना है. आप दिल्ली कैसे जाओगे? ट्रेन से जाओगे, बस से जाओगे, फ्लाइट से जाओगे, चल के भी जा सकते हो. तो कोई ना कोई साधन से आप जाओगे, ट्रेन, बस या प्लेन से. मगर भगवान को पाने का मतलब भगवान के, इट इज लॉर्ड हिमसेल्फ who becomes the instrument for transporting to you due to the end destination. It is only God, surrendering to this God, you can achieve God. You cannot achieve God without surrendering to God. You cannot say in the end I will surrender. No, the very first day you have to have the mercy of the Lord. आचार्यगण कहते हैं ये दो उंगलियां हैं, ये उंगली कितना भी घुमा लो, टच कर पाएगा? नहीं टच कर. Whereas this उंगली, the minute this comes down, can touch. That means what? जब तक भगवान की कृपा ना हो, भगवान स्वयं नहीं चाहे, इसके लिए सब मुद्रा, आप चाहे आचार्य को देखो, चाहे भगवान का मुद्रा देखो, मुद्रा कैसी होती है? ऐसी होती है. इसका मतलब क्या है? मैं कृपा करूंगा तब तू कुछ कर पाएगा. यू कैन डू एनीथिंग. जब तक भगवान कुछ नहीं चाहेंगे या भगवान की कृपा न हो, प्लीज डोंट थिंक यू कैन एवर ट्राई टू अचीव गॉड. दैट इज व्हाई इट इज सेड स काष्ठा स पराम गतिम. द प्रोसेस इज ऑल्सो गॉड
द एंड रिजल्ट इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गॉड. दैट्स वाई हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? भक्ति भगवान का कर रहे हैं इसके लिए, ताकि भगवान को पा सके. द एंड रिजल्ट इज ऑल्सो गॉड, द प्रोसेस इज ऑल्सो गॉड. दैट इज वाई डिवोशन इज कंफ्यूजिंग. हमको थोड़ा अजीब लगता है. हाँ, another thing is no third person or no other process. लोग कहेंगे मैं ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, क्या अष्टांग योग, ये सब करके मैं आई विल रीच गॉड और आई अचीव गॉड. ये कैसा है पता है? एक आदमी को बोला गया, अरे मेरे को मुर्गी पकड़ना है. अच्छा मुर्गी ऐसे पकड़ने के लिए पकड़ना, पका के खाने के लिए नहीं पकड़ना था. मतलब कैसे पकड़ेगा? अरे बहुत सिंपल है. दूसरे दोस्त ने बताया बहुत सिंपल है. पहले उस मुर्गी को पकड़, उसके सिर पे है ना थोड़ा मक्खन रख देना और उसको धूप में छोड़ देना. वो धूप में मक्खन मेल्ट होके घी बन जाएगा. घी बन के उसको आंखों में आ जाएगा, फिर उसको दिखेगा नहीं, फिर जगह पकड़ लेना. तो इसने बोला इतना लंबा प्रोसेस क्यों करो? पहले पकड़ो, मक्खन रखो, फिर छोड़ो, फिर वापस जाके उसको पकड़ो. तो आई वेट टिल दैट बटर मेल्ट्स डाउन, कम्स टू द आई एंड देन आई कैच इट. डोंट यू थिंक द अदर प्रोसेस आर लाइक दिस? डोंट यू थिंक द प्रोसेस ऑफ कैचिंग गॉड इज दिस इज द राइट प्रोसेस? जब पकड़ना ही है भगवान को, फर्स्ट सरेंडर, शरणागत हो जाओ तो भगवान को अपने आप पा सकते. सो दैट इज व्हाट द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग यू शुड हैव. Another best part of surrender is any age, at any time of the day, any person. Example of कोई जानवर शरणागति कर सकता है. गजेंद्र was an example of animal. कोई अच्छा हाई क्लास कोई फैमिली से, या कोई एजुकेटेड या ब्राह्मण, कुछ नहीं था, हाथी जानवर था. 1 मिनट में सरेंडर किया एंड इमीडिएटली गॉड केम. In any state, when Draupadi was being disrobed, she was in those 3 days. रजस्वला थी ना, वो 3 days में थी ना. उस टाइम पे also she surrendered and Lord came. Many people come and tell, प्रभु जी, how can I chant during my 3 days? What's the problem? When you are eating in those 3 days, when you are watching your Instagram and Facebook in those 3 days, why can't you chant? You can do all things. Yes, you cannot go near the altar, you cannot offer food. Yes, those things are there. Shastra has given us those limitations. But भक्ति वो एक ऐसी चीज है, हर परिस्थिति में, सोते जागते खड़े बैठे, जिस भी परिस्थिति में हो आप भक्ति कर सकते. उसमें के लिए कोई रोक टोक. विभीषण कैसे आया? आधे रात, दिन आणि मुहूर्त देख के नहीं, अच्छा अभी मुहूर्त है. ही केम इन द मिडल ऑफ द नाइट. अच्छा वहां से आया, कम से कम समुद्र में एक डुबकी तो मार के आता, नहा के तो आता, नहाया भी नहीं, ऐसे आ गया रात को 12 बजे. और भगवान ने, एंड इट्स वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन. लॉर्ड आस्क्ड फॉर सुग्रीव एंड ऑल टोल्ड, नहीं डोंट बिलीव. राक्षस है, रावण का भाई है, भेदी है, अपना सब सीक्रेट्स पता करने आया है, कांट बिलीव हिम. रावण को धोखा दिया, तुमको भी देगा, दिस एंड दैट. ठीक है. हनुमान जी, व्हाट डू यू से? हनुमान जी बोला नहीं, इसको देना चाहिए शरणागति, बहुत अच्छा व्यक्ति है, इज ए वेरी नाइस मैन, ही हैज डन लॉट ऑफ डिवोशन, आई हैव सीन हिम चैंट योर नेम. आचार्यगण कहते हैं भगवान ने सिर पे हाथ रखा, हाय, मेरे को कोई समझा नहीं. Nobody understood me. Why? Lord says, whether his past is bad or not, I am not bothered.
whatever his past was, I'm not bothered. Whether he is good man or a bad man, no problem. The minute he surrenders, one who falls down at my feet, I will give him surrender. I'll give him protection. The minute he surrenders, I will give him protection. And क्यों चरण पकड़ने चाहिए, हाथ नहीं पकड़ चाहिए? क्यों चरण नहीं पकड़ने चाहिए, हाथ क्यों नहीं पकड़ सकते? कहते हैं एक बार आदमी हाथ झटक सकता है, इसके लिए भगवान का चरण पकड़ो, हाथ पकड़ने की कोशिश मत करो. So that is, हाथ पकड़ना मतलब don't try pseudo devotion, try true devotion. सही भक्ति ट्राई करना चाहिए. Now Lord shows 3 types of surrender in 3 ages. What did he show to in Krishna Lila? How did he say? What did he say? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. भाई सब लोग मेरे शरण में जो आ गया उसको मैं जरूर बचाऊंगा, कृष्ण भगवान ने कहा. एंड व्हाट डिड वरादेव से टू भूमि माता? वरादेव सेड, एक्चुअली भूमि माता आस, बिकॉज उन्होंने, वरादेव ने भूमि माता को अपने टस्क पे लेके आए ना, तो तब भूमि माता ने उनको पूछा कि भाई आपके भक्त जो हैं, जो इस मेरे पृथ्वी में रहते हैं, उनका आप कैसे उद्धार करोगे? सो इट गिव्स अ लॉन्ग लिस्ट एंड फाइनली ही आस्क्ड दैट, भूमि माता आस्क्ड, अगर समझो, कहते हैं ना अंतकाले च मामेकम सुवर्णम मुक्तो कलेवरम रे प्रायति समद्भवम नात्र संशय यम यम वापि ब्रह्म यम यम वापि, whatever type of memory you have at the time of death, that type of yoni I will give. तो भूमि माता पूछती है कि अगर, भूमि देवी पूछती है, अगर लास्ट एट द टाइम ऑफ डेथ अगर व्यक्ति आपको याद नहीं कर पाया तो उसका क्या होगा? तब भगवान कहते हैं अगर जब उसका शरीर सही था, उसके पंच धातु सही थे, उस टाइम पे अगर उसने भक्ति की, इफ ही हैज डन डिवोशन एट दैट टाइम, देन अगर वो काष्ठ पाषाण सन्निभम में, कैसे, अगर एक काष्ठ मतलब लकड़े की तरह या पाषाण पत्थर की तरह अगर पड़ा हो, दैट इज व्हाट हैपेंस ना एट द टाइम ऑफ डेथ. वी आर ऑल लाइंग लाइक ए स्टोन, लाइक ए पीस ऑफ, लाइक ए लॉग ऑफ वुड ऑन द बेड. दोज हु आर इन कोमा, व्हाट आर दे? दे आर जस्ट लिविंग डेड एक्चुअली. तो भगवान कहते हैं डोंट वरी, उस मत भक्तिया मत स्मरा हम सरामी मत भक्तिया, मैं खुद याद कराऊंगा मेरे भक्त. आई विल कम एंड मेक माई रिमाइंड माई डिवोटी, प्रोवाइडेड स्टार कंडीशंस अप्लाई. क्या कंडीशन अप्लाई लगाया उसने? पूरे जीवन में जब उसका शरीर स्वस्थ था तभी अगर उसने भक्ति किया तो मैं उसको अंतकाल में उसको मैं स्मरामी एंड मैं अपने साथ लेके जाऊं. दैट इज द बेस्ट पार्ट. द बेस्ट पार्ट इज one can always have Lord's audience. Lord can always be there with you at all given times whenever one is in full devotion with God. And it should be only and only अहेतु, without any benefit. अगर बेनिफिट आ गया तो वो भक्ति नहीं रहा, भक्ति के नाम पे वो छलावा है. तो आचार्यगण कहते हैं कि जब कोई भक्त आता है ना तो स्वयं भगवान आते हैं उसको लेने के लिए. दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. द लॉर्ड इज ईगरली वेटिंग. अरे मेरा भक्त आ रहा है, मेरा भक्त आ रहा है. लॉर्ड इज ईगरली वेटिंग. हम लोग हैं, वी आर हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. I was, as I told you, I was on the way from Pune. So I saw one. We had taken a break in that food mall. So I had gone to the toilet, washroom, and I saw one boy, छोटा सा लड़का, थोड़ा इससे बड़ा रहेगा, हाँ प्रियांश का उम्र का रहेगा.
This boy was enjoying that hair dryer, hair blower. तो हवा blow करता ना. And I was watching this boy for a minute. I was watching him. कम से कम 4 से 5 बार हाथ जाके धोता, गीला करता, वापस आके सुखाता, वापस जाता, वापस धोता, वापस गीला. That's doing. I said, what's the difference between you and all the whole worldly people? हम लोग भी तो वही कर रहे हैं. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम. हम भी वही कर रहे हैं. भौतिक दुनिया का पानी में कर लिया, फिर उसका आनंद लिया है, सुखाने का आनंद लिया, वापस गए, वापस वही करने के लिए, डुबाने के लिए, ताकि वापस आ सके सुखाने के लिए. सेम साइकिल वी आर ऑल्सो डूइंग. इग्नोरेंस इज इक्वली द सेम. हम भी उतने ही अज्ञानी हैं. That boy doesn't realize he is in a shit house. A toilet is nothing but a shit house. Doesn't have a nice smell. It's a place where you want to get out at the earliest. वो ऐसी जगह है जहां से आपको तुरंत निकलने की इच्छा है, बट फिर भी वो मजा ले रहा है उसका. वो भूल गया कि किस गंदे जगह पे है वो. हमारी भी वही. हम लोग भी इस दुनिया में कुछ like you can say enjoyments. कुछ अच्छा खाना, nice sensual pleasures and this and that. ये सब कुछ चीजों को देख के and busy earning money and doing achieving some name, fame, power, whatever it is. इसमें इतने रचे बचे, इतने busy हैं कि you have forgotten that you are in a toilet. This world is a stinking place. Our body stinks. Within 6 to 8 hours our body starts stinking if we don't take a bath. इतना गंदा जगह है ये धरती, और उसमें भी माता जी हाँ, it's such a dirty place. Child is not aware. He's so happy. हर हाथ सूख रहे, वापस गीला कर रहा है, वापस सुखा रहा है. Such a dirty place. And same thing. वही बार बार जन्म, वही बार बार दो. So one has to understand that one has to always try to surrender to God and try to have the propensity to get out of this world. कितने लोगों के अंदर वो सोच है कि मैं धरती से बाहर निकलूं. नहीं, भक्ति करते हैं मगर ये जम के रहेंगे. अरे भक्ति करने का मतलब क्या है? यू हैव टू डेवलप ए रिपल्शन टुवर्ड्स दिस मटेरियल वर्ल्ड, देन यू विल डेवलप एन अट्रैक्शन टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. अगर इस धरती के प्रति आपका कोई अभी तक व्हाट वर्ड फॉर यू से फॉर रिपल्शन है हिंदी में रिपल्शन, घृणा नहीं, घृणा क्या व्हाट इज हिंदी वर्ड? नहीं, जब तक आपको इसको छोड़ने का, इस धरती को छोड़ने का मन ना करे ना, तब तक उस वैकुंठ लोक के प्रति आपका लगाव नहीं आएगा. बिकॉज हम ठीक है, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा ये वो फाइन. घृणा ना, विरक्ति. हाँ, विरक्ति. ठीक है, आप लोग अपना अपना डिक्शनरी से लगा लो वर्ड, मुझे छोड़ो. ओके, द पॉइंट इज वन हैज टू डेवलप सम अटैचमेंट टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. उसके लिए फर्स्ट मटेरियल वर्ल्ड से. और हम लोग बढ़िया, हम लोग कल रिसोर्ट जाके बढ़िया बचा है. सब इतना सब सुनने के बाद द मिनट यू ओपन द डोर एंड गेट आउट, वी आर लाइक दैट चाइल्ड. We are like the child. We forget that our main purpose is something more superior. Then, one more thing. Surrender should not be blindfolded. One question I would like to ask. रामचंद्र जी जब समुद्र पार करना चाहते थे तो उन्होंने समुद्र देवता की शरणागति की, है ना, शरणागति की ना. 3 दिन तक घास के शयन में बैठ के वहां पे उन्होंने तपस्या की. और जब 3 दिन के बाद समुद्र देवता नहीं आए तो उन्होंने क्रोध आके
तो उस इस लीला से हमको क्या पता चलता है? एक बात याद रखना, रामायण का हर एक लीला के पीछे कोई ना कोई बड़ा राज छुपा हुआ है. Some big meaning is hidden behind all these things. Tell me. हाँ? भयबिन पे ना, ये गलत. एलिजिबिलिटी नहीं थी. परफेक्ट. शरणागत उसकी करो जिसकी वो लायकियत हो उसकी शरणागत करने की. How can Lord took? He can just order him, and finally he ordered only. Finally he ordered. He just wants to show. He wants to give us a lesson कि भाई don't surrender to someone who is not worthy of Surrender. हम लोग ये आजकल देखते हैं ना, बाबा के सरेंडर रहते हैं. XYZ बाबा के ट्रेंडिंग थर्सडे बाबा, ट्रेंडिंग बाबा, फ्राइडे बाबा, ये बाबा वो बाबा. वाई इन बाबाओं का पीछे शरणागत होके कोई फायदा है? करना शरणागति तो उसकी करनी है जो एक्चुअली वर्दी हो. यू शुड बी फिट फॉर सरेंडर. सो दैट इज व्हाट इज important. And yes, it is only possible through an acharya or a guru. Now you will say, why a guru? You don't need a guru. What's the need? Guru या acharya का जरूरत क्या है? Direct one to one. Why I should have someone in between? What is the need of having someone in between? Yes, why do you need Mataji, guru in between? Direct. Because we are not capable enough to reach God. So You can make yourself capable, no? You can make yourself, right? What's the harm? एक कहानी बता. एक बार कुछ लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे थे. They are going by car. अचानक they realized कार या जीप जो भी पकड़ लो, और जीप का ब्रेक फेल हो गया. सब लोग परेशान, हाय हाय तो वो अभी हम लोग गए, मर गए, ब्रेक लग नहीं रहा है. वो भी ड्राइवर भी कोशिश कर रहा है बट लग नहीं रहा है, कोशिश कर रहा है. तो देखा उस पूरे जीप में एक बच्चा बैठा है, वो मस्त अपना पेपर पेंसिल लेके, अच्छा बच्चा था, मोबाइल नहीं खेल रहा. आजकल के बच्चे वही खेलते हैं ना. तो वो अच्छा था, वो मोबाइल पे खेल नहीं रहा था, वो कुछ खेल रहा था बट बिना टेंशन. तुझे पता है कुछ, तू इतनी भी छोटी नहीं कि दादा ने मालूम है हम लोग मरने वाले हैं, गाड़ी एक्सीडेंट होने वाली है और तुम खेल रही है. वो फिर भी आराम से खेल रही. एंड में किसी भी तरह उस ड्राइवर ने एक पेड़ के ऊपर जाके उसको टकरा के गाड़ी को रुका दिया. तो सब लोग उतरे, हाय बच गए. और लड़की को पकड़ के, देख कितनी बेवकूफ है तू, कोई अक्ल ही नहीं है तेरे अंदर. यू आर नॉट एट ऑल सीरियस. यू शुड बी सीरियस अबाउट डिवोशन. I mean, so about the situation. The situation was so bad. हम लोग मरने वाले थे. तुमको मालूम है कौन है? बोला कौन? वो जो गाड़ी चला रहा ना, उसका मैं बेटी हूँ. जो गाड़ी चला रहा ना, मैं उसकी बेटी हूँ. और याद रखना, मेरे पिताजी ना चाहते ना तो चलते गाड़ी में उतर के भाग जाते थे. अकेला आदमी है, उठ जाते थे. पर उन्होंने गाड़ी आज बचाई क्यों? सब लोगों को बचाई क्यों? मेरे वजह से. Because he was concerned about his daughter. Similarly, an acharya and guru is like this child. He is not like the driver. He is like the child. Driver is God. He is the main person. Driving force उनके पास है. And जब भगवान जब चाहते हैं, हाँ ये बचा, ये बचना चाहिए, बाकी बच गए ठीक है, बाई प्रोडक्ट बच गया ठीक है. So that is why one should surrender to an acharya, a guru, and take initiation. And the reason is that without taking a proper shelter of a guru, you cannot directly go and meet God. You need a medium. Once Guru Nanak ji, and I don't know how many, any Sikh is there, only Sardar, कोई सरदार नहीं है ना यहाँ पे. जो सरदार के गुरु थे गुरु नानक जी, वहां पे एक बार जगन्नाथपुरी गए. उनका आज भी आरती जगन्नाथपुरी में बना हुआ था.
90% ऑफ द सिक्स themselves don't know. जो पहला आरती है वो वहां, तो he was gone there. So everyone, all the shishyas, they fell at his feet. तो वहां का पांडा को गुस्सा है, क्या है, व्हाट इज दिस, यहाँ पे एक ही नाथ है, वो है जगन्नाथ, बाकी यहाँ कोई नहीं है, सब अल्लू मंजू है, आप किसी के पैर मत पड़ो. तो गुरु नानक जी बोले, माफ करना, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं थोड़ा बुद्धू हूँ, आप एक काम करेंगे, मेरे एक छोटी सी मदद कर देना. तो वो पांडा थोड़ा कूल डाउन हो गया, ठीक है माफी मांग रहा है, ठीक है, बोला मुझे एक काम करो, थोड़ा सा मुझे ना हवन, रोज मैं अग्नि करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा ये दे देना, क्या कहते हैं, आग, मुझे आप थोड़ा सा आग दे देना, ठीक है. कभी चाहिए, सुबह चाहिए, अच्छा. अगला दिन सुबह लेके आए, कोयला जलता हुआ कोयला लेके आए, बोला लो आपका यज्ञ कर लो. नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आग चाहिए. क्या बोले, आग चाहिए. अच्छा मशाल लेके आओ, लकड़ा मशाल जलता हूँ मैं, नहीं 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 मुझे सिर्फ आग चाहिए. तो पांडा को आया गुस्सा, मशाल नहीं चाहिए, कोयला नहीं चाहिए, हाँ, सिर्फ आग कैसे आएगा, किसी ना किसी चीज से उठा के लाना पड़ेगा ना, ऐसे तो आग आएगा नहीं. यू नीड अ कैरियर. तब उन्होंने ऐसे उसको देखा, बोला भगवान को पाने के लिए भी कोई ना कोई साधन चाहिए, अपने आप से हम भगवान को पा नहीं सकते. दिस इज अ ट्रू स्टोरी विच हैपेंड विद गुरु नानक जी इन जगन्नाथपुरी. ये उन्होंने बोला कि भाई फायर इज व्हाट यू रिक्वायर इज फायर. आपको क्या चीज चाहिए, अग्नि चाहिए, मगर अग्नि अपने आप नहीं आ सकती. You can't carry a ball of fire like that. You need to carry a cotton ball which is burning. You need to carry a wooden ball or wooden मशाल चाहिए, या आपको कोयला चाहिए, burning coal piece require, something will require. This is the first one has to understand कि भाई it is only through an acharya, and that too through a wife, through his wife, God's wife, the best person to catch hold of. That is why people worship Lakshmi. They don't worship Lakshmi for Vishnu. They want Vishnu only for, they want Lakshmi only for wealth. अरे जो वेल्थ की रानी है, भगवान के चरणों में सेवा कर रही है, तो उसके पास कितना होगा. अरे इवन बिजनेस माइंडेड सोचो. थिंक बिग ना, व्हाई थिंक स्मॉल. आपका स्मॉल टारगेट है, फिर थिंक बिग. तो इट इज बेटर वी वर्शिप विष्णु, बट इट इज थ्रू लक्ष्मी जी से कभी बोला है भगवान विष्णु से बात, नहीं नहीं आप वो सब छोड़ो, पैसा दो, हाँ वो सब छोड़ो, मेरे को पैसा दो. बट हम लोग एक्चुअली पूछना क्या चाहिए, गो टू राधा रानी. लोग राधा रानी के उपासक हैं, मगर कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि राधा रानी से उनसे रिक्वेस्ट करें, उनके शरण ले आए, और उनके थ्रू किसको पाए, कृष्ण को पाए. सो राधा रानी इज अ बेस्ट पर्सन, बिकॉज अगर उन्होंने बोल दिया ना, गारंटीड आपको कृष्ण मिल जाएंगे. एक बार आप डायरेक्टली कृष्ण के पास जाओगे, शायद मिले न मिले, मगर थ्रू राधा रानी कृष्ण इज गारंटीड, थ्रू लक्ष्मी विष्णु इज गारंटीड, थ्रू सीता मैया. एवरीवेयर वन हैज टू हैव दिस फोकस. ये सोच होनी चाहिए कि भाई दैट द प्रॉब्लम इज वी आर स्टक इन दिस टॉयलेट. वी आर ऑल स्टक इन दिस टॉयलेट, बिजी डूइंग सम monkey business, not having a higher thinking, a higher evolved thinking. ठीक है, another 5 minutes. Then we come to the most important shloka, which is there in our nectar of in our Hari Bhakti Vilas, which says anukulyasya sankalpa pratikulasya varjanam. There are 6 symptoms of शरणागति. 6. ये कब होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड. चलो आज समझे लोग, सब लोग ने सुन के शरणागति करने की कोशिश डिसाइड कर लिया. तो शरणागति करने के बाद ये चीज करनी है, ये चीज पहले नहीं करनी, ये चीज शरणागति करने के बाद. शरणागति का मतलब व्हेन यू आर कन्विंस्ड दैट द मोस्ट सुपीरियर और द मोस्ट सुप्रीम इज
God. Krishna or Vishnu, whatever you call it. I mean, that is from person to person, it varies. But finally, one who knows who is God and I have decided to surrender, then these rules have to be followed. अनुकूल्यस्य संकल्प, जो भगवान को पसंद है वही करेंगे, जो भगवान के पास हमको लेके जाएगा वही चीज करेंगे. प्रतिकूलस्य वर्जनम, अनुकूल्यस्य में क्या क्या आता है? भगवान के जो प्रिय है, भगवान ने जो शास्त्र में कहा है उस हिसाब से हम भगवान की सेवा करेंगे. प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, प्रतिकूल में सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉलोइंग 4 regulative principles. No meat eating, no intoxication, no illicit sex and no gambling. ये 4 चीज फर्स्ट. एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई अपराध ना करे. भक्ति मार्ग, हम लोग भक्ति मार्ग में आ तो जाते हैं आसानी से, मगर अपराध कब करें पता नहीं, कब हो जाता है पता नहीं. कोई जानबूझ के करता नहीं, बट अपराध हो जाता है. एंड सबसे मोस्ट डेंजरस इज वैष्णव अपराध. कौन से अपराध हैं भाई? कौन से अपराध हैं? बोलो. हाँ, धाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध और सेवा अपराध. बोल दिया. सेवा हो गया, धाम हो गया, वैष्णव हो गया. दीज आर द नाम अपराध. नाम अपराध तो वी आर एक्सपर्ट इन दैट. हाँ, फिर लेंगे नहीं लेंगे, लेते भी रोते रोते लेंगे या सोते सोते लेंगे. दो ही चीज है, हंसते खेलते कभी नहीं लेंगे. जिस दिन अगर किसी को बाहर, सपोज कल माता जी आपको कोई अपॉइंटमेंट रहेगा सुबह, खुशी खुशी उठेंगे ना? उठेंगे कि नहीं? हाँ, क्लाइंट, हाँ, सुबह जल्दी उठेंगे. मगर आप बोल माता जी सुबह उठ के जरा भगवान का नाम लो. नहीं प्रभु जी, कल लेट नाइट हो गई. हाँ, कल लेट नाइट हो गया, क्लाइंट के पास गया था, जो भी काम था, कुछ भी था, सुबह उठ के कभी भगवान नाम लेने को तैयार नहीं. क्यों? भक्ति के लिए अभी तक वो that thrust has not yet come inside us. that वो जोश जो बोलते हैं ना, वो अभी तक आया नहीं. So अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम. ऑलवेज भगवत अपराध से बच के रहना. और भगवत अपराध कैसे पता चलेगा कि भगवत अपराध है? दैट इज यू हैव डन वैष्णव अपराध. कैसा पता चलेगा? नहीं, वो होने के बाद क्या फायदा? पहले मालूम कैसे होना चाहिए कि वेदर इट्स वैष्णव अपराध और नॉट. इन रामायण, when Bharat comes with the whole Sena, Lakshman gets very angry, jittered. He says, he has come to kill you. भैया आप रुको, मैं अभी जाके युद्ध करता हूं और अभी पूरा सबको मैं खत्म कर दूंगा. Approach Sheshnaग, so you can do it. So immediately Ram says, no, Bharat is not like that. I know my brother, he is absolutely having no inclination for my kingdom. मेरे राज्य के पीछे नहीं है, भेजो उसको आने दो. मैं बोलता हूँ अच्छे मुझे लेने के लिए आया है, हम लोगों को लेने आया है. He is firing, this fellow is boiling. And in fact, रामचंद्र जी goes to one extent of saying, मैं अगर बोल दूं ना भरत को, तो मेरे कहने पे तुझे राज्य दे देगा. युद्ध बिना युद्ध लड़े तुझे राज्य मिल जाएगा, हम लोगों को नहीं चाहिए. तो लक्ष्मण पुट्स हिज नेक डाउन. इतना हो जाता. इट्स अ बिग हॉट कन्वर्सेशन बिटवीन रामचंद्र जी एंड लक्ष्मण जी. सो आचार्यस कमेंट्री ऑन दिस. क्या ये वैष्णव अपराध नहीं है? क्या ये वैष्णव अपराध है या नहीं? बोलो. इग्नोरेंस है. नहीं, इग्नोरेंस नहीं है. आचार्य से दिस इज नॉट अ वैष्णव अपराध. द रीजन इज इट इज फॉर हिज लव एंड अफेक्शन फॉर द लॉर्ड. ही हैज इवन अग्रीड टू फाइट विद हिज ब्रदर. तो इट इज ओनली लव एंड अफेक्शन. मतलब वो प्रेम में, भगवान के प्रेम में पागल हो गए. हम लोगों को भी भगवान के प्रेम में पागल होना है, और हम लोग भौतिक चीजों की दुनिया के पागल हैं.
We are more happier with an iPhone. What is it now? 15 आ गया, 14 आ गया. We are more happy and more interested in a latest iPhone rather than the old process of achieving God. अवश्य रक्षति विश्वासो. Always one should have faith that he will protect me, he will save. भगवान के ऊपर प्रोटेक्शन का फेथ होना चाहिए. और हम लोग कैसा करते हैं? मंडे वाला नहीं तो ट्यूसडे वाला नहीं तो वेडनेसडे वाला नहीं तो थर्सडे वाला स्टैंड बाय में सबको रखते हैं. दैट मीन्स व्हाट? व्हेन यू डोंट हैव फेथ, व्हेन यू सरेंडर एनीवन एल्स अदर देन गॉड, गॉड सेज जा भाई. 100% faith should be there. Without 100% faith, nothing in this world, even in your day-to-day life, when you're sitting in an auto, you have a faith that the auto will take you home. You have a doubt ना ठोकेगा, मरेगा, मर डालेगा, प्लेन में बैठा क्या मालूम गिरा देगा. If you have a fickle-minded, a suspicious mind, you will reach nowhere. One should have faith. Yes. रक्षसी विश्वास हो, ये मुझे बचाएंगे. और अगर वो फेथ नहीं है ना, यू आर एज गुड एज अ नास्तिक. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नास्तिक? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नास्तिक? अरे सिंपल क्वेश्चन. What does not exist for them, sir? नो. डेमिगॉड्स को भी नहीं. जो वेदास को ऑथोरिटी नहीं मानते हैं नास्तिक. परफेक्ट आंसर. जो वेदास की, I have explained this, right? Ripin, I have explained this earlier also. जो वेदास की बातों को नहीं मानता है उसको नास्तिक कहा गया है. जो भगवान को नहीं मानता है वो क्या वो कहते हैं, there's another word for that. निरीश्वरवादी. निरीश्वरवादी, he doesn't accept God. निरीश्वरवादी, ईश्वर को मैं ही मानने वाले, वो अलग हो गए. मगर एथिस्ट वो होता है जो शास्त्र में दिए हुए सभी कर्मों का और अनुष्ठानों का पालन नहीं करता है. he becomes a Nastic. He is as good as a Nastic, or he is a Nastic. And here what he is saying, one who doesn't have faith on that Lord will protect him, तो वो नास्तिक है. Then गोतृप्तेन वारणः, accepting भगवान as one's only mentor or rather maintainer. कौन सा वर्स आपको ये दूसरा वर्स ये मैं अपना इससे पढ़ रहा हूँ, हरिभक्त विलास से पढ़ रहा हूँ. अच्छा. I'll send you that verse, don't worry. What did I say? गोतृप्तेन वारणः, मतलब यही मेरे माँ बाप हैं. मेरे असली माँ बाप कौन है? हम लोग बोलते हैं ये अनाथ है, अनाथ है. अनाथ वो नहीं है जिसके माँ बाप नहीं है. अनाथ वो है जो भगवान को अपना माता पिता नहीं समझते. वो नाथ है. अनाथ वो होता है जो भगवान को अपने माता पिता, बाकी हमारे भौतिक माता पिता तो क्षणिक है, कुछ जीवन के लिए. कुछ बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाते हैं, भगवान कभी उठाएगा. हाँ, वही बच्चा बोलेगा पापा को उठा ले भाई, बहुत परेशान कर रहा है, माँ को उठा ले, बहुत परेशान कर रहा है. सो अंडरस्टैंड, असली नाथ, द इटर्नल फादर और इटर्नल मदर इज विष्णु एंड लक्ष्मी. इन एनी फॉर्म यू मे टेक, दैट्स डिफरेंट, बट विष्णु एंड लक्ष्मी आर गोइंग टू बी अवर इटर्नल पेरेंट्स. एंड देन आत्मनिक्षेप, sorry, what is it? गोतृप्तेन वारणः. Yeah. आत्मनिक्षेप, कंप्लीट सबमिशन ऑफ वन सेल्फ. कुछ भी मारो भी, राखो भी, जो इच्छा तुम्हारी. तुमको मुझे बचाना है बचाओ, मारना है मारो, जो भी करोगे मुझे एक्सेप्टेड है. वो परिस्थिति में जब व्यक्ति जाता है, देन देयर इज 100%. जब तक वो व्यक्ति उस स्थिति में नहीं रहता है, क्या मालूम, थोड़ा अपना बंदोबस्त करके रखता हूं. I have always told this story, but I'll tell. Today lecture will go for 5 minutes more. Please adjust. एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान था, गरीब था बेचारा, उसको ऑपरेशन करना था. तो
जाके मांगे किसे, बहुत पैसे जरूरत थी, कम थे पैसे, जाके मंदिर में बैठ गया रात को, मंदिर के पट तो बंद थे, बाहर मंदिर के बाहर बैठ गया और भगवान से याचना कर रहा था, भगवान मुझे कल ऑपरेशन करना है मेरी बीवी का, पैसा नहीं है मेरे पास, कहां से आएंगे। उसी वक्त एक अमीर धनी व्यक्ति, उसको नींद नहीं आ रहा, एंड धनी व्यक्ति क्या करता है, लॉन्ग ड्राइव को जाता है। So he took out his car and he went out for a long drive. And there he wondered in the night around 12 o'clock, who is sitting in the temple, outside the temple? कौन है वो मंदिर के बाहर बैठ के भगवान की याचना कर रहा है? He asked the driver, saying, he put the car to the side and went and asked him, क्या हुआ भाई, what happened? He said, ऐसा ऐसा है, मैं इसके लिए परेशान हूँ, इसके लिए भगवान से मैं विनती करने का। I said, why you are worried? कितने चाहिए ना? You want X amount, right? I got it in my pocket. Just remove that money and I gave him. And then he said, okay, one thing, this is my visiting card. You keep it. If you require more, you call me. He said, I don't want your visiting card. तो उसने बोला, अरे कुछ जरूरत पड़ा तो मुझे पता है, अगर और जरूरत पड़ी तो किसके पास आना है मुझे मुझे और जरूरत पड़ा तो किसके पास आना है मुझे पता है. Because a man has a limitation. A man has got prejudice. नहीं, इसकी बात, ये आदमी खोटा आदमी लग रहा है, ये सही आदमी, इसको दो. No, you human analyze as per our own way. ये सही लग रहा है, ये गलत लग रहा है, ये अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है. बट भगवान जो शरणागत हो गया उसको दे दिया. तो ही न्यू, मुझे अगर मांगना है मैं तेरे पास 100 सेट भेज दूंगा, मेरे भगवान मेरे को 100 सेट और भेज देंगे पैसे के लिए, अगर मुझे चाहिए तो वो किसके पास? He was one focused, shape. He was totally surrendered to God. That is what is required in Sharanagati. So if one is not surrendered in that manner, it is of no use. Karpanyaha, humble. One should be humble. कोई कोई भक्ति करने के बाद है ना, पता है मैं कौन हूं, मठाधीश हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने इतना पढ़ लिया, इतना शास्त्र कर लिया. That pride should not be there in. वो घमंड नहीं होना चाहिए. आदमी should be down to earth. So these are the 6 symptoms one should follow after going into शरणागति. शरणागति जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शरणागति करना कैसे पता है? जैसे आप लोग ने सबने गणपति का स्टोरी सुना रहेगा, मोदक वाली, कार्तिकेय जी और गणेश जी, जिसको जो पहला धरती को घूम के आएगा उसको मोदक मिलेगा, स्टोरी तो सुना रहेगा. तो एक्चुअली व्हाट डज द स्टोरी इंडिकेट? One part people say, yes, mother, father, or the whole universe. Yes, that's fine. But what is the higher understanding? आपको ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान, अष्टांग योग, ये सब करके आपको कार्तिकेय की तरह मयूर में बैठने की जरूरत नहीं है. सिर्फ भगवान के चरण पकड़ लो, भगवान की पूजा करो अपने आप. एंड लोग अक्सर, सॉरी आई स्किप्ड वन वर्ड बाय सेइंग पूजा करो. पूजा मत करना, भक्ति करना. पूजा मत करना, भक्ति करना, क्योंकि पूजा करना एक क्रिया है. पूजा करना सिर्फ एक क्रिया है. भक्ति करना मतलब मन में, जैसे हमने आपके अपने घर के सदस्यों के लिए एक जगह रखा ना, दिस कॉर्नर इज फॉर माय वाइफ, फॉर माय सन, फॉर माय डॉटर, फॉर माय ग्रैंड डॉटर, दिस दैट, वी हैव गॉट वेरियस कॉर्नर्स. आई डोंट नो, मल्टी चेम्बर्ड, quote unquote, people understand that. So there are multiple chambers बना के रखे हैं, but किसी कोने में भगवान को रखा है. क्यों? द प्रॉब्लम हम लोग नहीं रखना चाहते ना, वो आ गए ना, बाकी लोग अपने आप निकल जाएंगे. वो डर है, वो भय है, इसके लिए हम भगवान को कोने में नहीं. द डे वी कीप गॉड इन अवर हार्ट, वी आर अफ्रेड. क्या मालूम, माई लव टू माई other things, my materialistic things, my materialistic people, I may lose. So it's better one does. So that is what this verse, what we read, indicates. They literally fainted because they can't imagine separation from God. That is the reason God is coming every now and then to visit the Pandavas. Why? Because the Pandavas were surrendered.
When Pandavas are surrendered, there's no problem. When Pandavas are, when you are, when one is surrendered, you have no problem. One who is not surrendered, दुर्योधन को भी कृष्ण दिखे, पांडव को भी कृष्ण दिखे, मगर सिर्फ पांडव ही समझ पाए कि वो भगवान है. दुर्योधन देखकर भी, उसके विराट रूप देखकर भी उसको क्या बोला, तू माया शक्ति दिखा रहा है, इसको बंदी बना दूंगा. तो देखा दोनों ने. सो याद रखना, भगवान को देखना बड़ी बात नहीं है, भगवान को समझना बड़ी बात है. गॉड में कम इन फ्रंट ऑफ यू इवन टुडे, बट इफ यू डोंट हैव आईज ऑफ डिवोशन, आपके अंदर ज्ञान और भक्ति के चक्षु नहीं होंगे ना, इसके लिए प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने, प्रेम का अंजन. कौन सा प्रेम? हम तो प्रेम बहुत लगाते हैं, बट वो प्रेम नहीं. भगवान के प्रति भक्ति का जो अंजन होता है ना, अंजन मतलब काजल जो लगाते हैं ना, वो आंखों से जब भगवान को देखोगे ना, तब आपको भगवान प्राप्त होंगे. तब तक कुछ भी कर लो. Okay, till then we'll continue next time. Till then, Hare Krishna. Anybody has got any doubts, questions, can ask.